رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و سامعات، میں عبدالرحیم نعیم الدین آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً کہتا ہوں انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی حیدرآباد انڈیا کی جانب سے. اس کے پروگرام آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصے اول نماز کے ذریعے سے. تو کورس نمبر 1 ہے یہ، اور لیسن نمبر 1A اور B ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کے ذریعے سے. آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے سبق نمبر 2 پارٹ A اور پارٹ B انشاءاللہ. قبل اس سے پہلے میں میری گفتگو آگے بڑھاؤں، سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ نے سبق پڑھا؟ جی، سبق یعنی یہ آنے والا سبق جو ہے اور پچھلا سبق. پول میں لانچ کروں گا انشاءاللہ. آپشن ہے ہاں آپ نے 100% پڑھ لیا ہے، یا 50% سے زیادہ، یا 25% سے زیادہ، یا آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ پول کو میں لانچ کر رہا ہوں، آپ کو پول میں جو ہے جواب دینا ہے. ماشاءاللہ، ویری گڈ. وی ہیو آلموسٹ 260 participants and please be true to yourself. یہ سوال کے لیے، بٹ یو نو sometimes ان ذکر تنفع المؤمنین، اللہ نے کہا یاد دہانی مومن کے لیے نفع بخش ثابت ہوتا ہے. So please don't mind. So stopping in 3 seconds. 3, 2, 1 and stop. ماشاءاللہ. Let me share the results. میں رزلٹ کو شیئر بھی کروں گا آپ سے. ماشاءاللہ، very happy to see that 41% says that کہ 100% آپ نے دیکھا ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور آپشن بی میں 22%، آپشن سی میں 11%، آپشن ڈی میں 26%. ماشاءاللہ، میں اللہ بلیس سب کو، اللہ تعالیٰ خوب برکت سے نوازے انشاءاللہ. اور جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ. تو پہلے سبق میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دیکھا تھا، رائٹ؟ تو ترجمہ کریے اعوذ. ایک سے زیادہ جواب کا انتخاب آپ کر سکتے ہیں اس میں. ملٹیپل چوائس، ملٹیپل سلیکٹ کا چوائس. اوکے، یہاں دیکھتا ہوں. نو، سنگل چوائس کا ہی آ رہا ہے میرے پاس. کوئی بات نہیں، ایک بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ دونوں معنی آتے ہیں اس کے. ماشاءاللہ کافی لوگ جواب دے رہے ہیں. جی، میں میکسیمم 30 سیکنڈز دوں گا ہر سوال کے لیے. سٹاپ کر رہا ہوں. 3, 2, 1 اینڈ سٹاپ. رزلٹ کو شیئر کر رہا ہوں. ماشاءاللہ تبارک اللہ، آلموسٹ 125 لوگوں نے صحیح جواب دیا. میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، آتا ہوں یا آؤں گا. تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اس میں سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1، 2، 3 دیکھیں گے انشاءاللہ، اور گرامر میں ہوا مسلم ہم مسلمون دیکھیں گے، اور ایک نکات تعلیم. آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس پورے سبق میں ہم 232 الفاظ سیکھ رہے ہیں، 232 ورڈز. اور یہ 232 ورڈز قرآن شریف میں 78,000 ٹوٹل ورڈز ہیں، 78,000 کل الفاظ ہیں قرآن مجید کے. تو ہم آپ کو اس پورے کورس میں 232 الفاظ سکھائیں گے انشاءاللہ، جو قرآن میں 41,000 ٹائمز ریپیٹ ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو 232 الفاظ کو 20 اسباق میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ڈیوائیڈڈ اوور 20 لیسنز. تو اس سبق نمبر 2 میں ہم آپ کو 15 ورڈ سکھائیں گے انشاءاللہ، جو قرآن میں 1390 ٹائمز ریپیٹ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ گراف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سبق بس سبق جو ہے اوپر بڑھتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ. سو ٹوٹل ورڈز ان قرآن 78,000. اللہ سے دعا ہے کہ یہ انشاءاللہ سبق بس سبق ہم پورا کرتے چلیں انشاءاللہ،
تاکہ ہم کو پورے قرآن کے 78,000 الفاظ سمجھ میں آئیں انشاءاللہ باذن اللہ. آئیے سورۃ الفاتحہ کا ہلکا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں. یہ قرآن کی پہلی مکمل سورت ہے. فرسٹ کمپلیٹ سورہ ہے. یہ پہلی جو ہے مکمل سورت ہے اور اتنی اہم ہے. آپ جانتے ہیں اس سورے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے. دن میں یہ کئی بار پڑھی جاتی ہے, آپ کو پتا ہے. یہ دیکھیے تعوذ سورۃ الفاتحہ کے الفاظ قرآن مجید میں سبحان اللہ 9000 ٹائمز آئے ہیں. سبحان اللہ 9000 ٹائمز. آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید کی ہر لائن میں ہر پیج میں 15 لائنز ہوتے ہیں. 15 لائنز ہوتے ہیں اور اس کے پیجز جو ہے 600 ہے. 600 into 15 is 9000. سبحان اللہ. تو گویا کہ قرآن مجید کی ہر لائن میں ایک سورۃ الفاتحہ کا ورڈ ہوتا ہے, تعوذ یا سورۃ الفاتحہ. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے جو الفاظ نظر آ رہے ہیں ریڈ ہائی لائٹڈ کلر میں, یہ سورۃ الفاتحہ یا تعوذ کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ. یعنی in other words almost 10% of the Quran is سورۃ الفاتحہ. سبحان اللہ. دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو آسان فرمایا ہے. اللہ اکبر. پہلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ اللہ کی, من الشیطان شیطان سے, الرجیم جو مردود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. the one who wants to answer can raise your hand. ٹھیک ہے. یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم نے پڑھا تھا اس میں ایک سکسیس ہیبٹ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا. تو the one who wants to give the answer can raise your hand. Yes, mashallah, I see many of you. Mashallah, tabarakallah. Okay, let me ask Dr. Faria Khan. Please unmute Dr. Faria Khan. Yeah, Dr. Faria, you may unmute now. Dr. Faria, are you listening? Okay, let us take some other participant. Abdullah Farooq, please unmute. Brother Abdullah Farooq. Yeah, what was the habit learnt in A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem? Brother Abdullah? No, I don't know why. we can select some other person. Okay, Brother Farhat Khan. Brother Farhat Khan, please unmute. Brother Zubair, I don't know what's the issue, why they are unable to unmute, or I don't know. No, I've already given them an access to unmute. Okay, Sister Farha. Sister Farha. Strange, almost 4 of them. No, Dr. Faria, she have unmuted once. Okay, anyway, people are giving the answer through the chat. Okay, that's fine. No, Brother Zubair, they are telling that there is no option of unmute there, they are telling. No, I have already unmuted these students, but I don't know what's going wrong. Most of them through the chat, they are telling that they don't have the option of unmute. I don't know what's this. Okay, we may carry on. I'll just check for the other one. Okay, but mashallah, many of them have given the answer through the chat. Sanam Banu, okay. Muhammad Muzammil has given the answer. Saud Mirza has given the, okay, mashallah. Here is smiley for those who have given the correct answer. Mashallah, may Allah bless. Yeah, safety first, okay. The habit learned in Ta'awudh A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem was safety first. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं. Bismillahir Rahmanir Rahim. Okay.
बिस्मी दो लफ्जों का मजमुआ है, बी प्लस इसम। बी का मतलब है से, बी के और भी माने आते हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से माना चेंज हो सकता है। बी का मतलब है से, इसम का मतलब है नाम। आपने सुना होगा मा इस्मुका, स्लैंग में कहते हैं शिस्मुक, व्हाट्स योर नेम, शिस्मुक, असल में है मा इस्मुका। वो जब स्लैंग और स्पीड में आ जाता है तो इस्मुक या शिस्मुक इस तरह से हो जाता है। तो इसम की प्लूरल है अस्मा, इसम की प्लूरल अस्मा 39 टाइम्स रिपीटेड इन कुरान। सुभान अल्लाह। एक पोल का सवाल आ गया आपके पास में, रहमान के माने क्या है? रहमान के माने क्या है? खूब माफ करने वाला, या निहायत रहम करने वाला, या फिर निहायत प्यासा, या निहायत भूखा। रहमान। पोल को मैं रिलॉन्च कर रहा हूं, आप इसमें मीनिंग बोलेंगे। माशाल्लाह, वेरी हैप्पी टू सी द क्विक आंसर्स। बड़े जल्दी जवाब दे रहे हैं आप लोग। मैं ब्लेस एवरीवन। जैसे मैंने कहा कि 30 सेकंड्स मैं दूंगा, only 3 seconds are left. Okay, let me stop in 3 seconds. 3, 2, 1 and stop. Mashallah. Sharing the results. Mashallah, almost 84% of you have given the correct answer. Mashallah. Option B is the correct answer. निहायत रहम करने वाला। ठीक है, निहायत रहम करने वाला, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका तो हमने देख लिया, व्हाट हैबिट वी लर्नड इन औज़ु बिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मी नाम से अल्लाह ही, अल्लाह के। इसम की प्लूरल है अस्मा, उसको याद रखने के लिए अस्माउल हुस्ना। अल्लाह ने कहा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, सारे अच्छे नाम अल्लाह के, तुम उनको उससे पुकारो। रहमान लफ्ज को देखिए जो बहुत मेहरबान है, रा हा और मीम से बना है। इस तरह के अरबी अल्फाज में जोश का इजहार होता है, रहमान इस तरह से। और भी उसके सिमिलर वर्ड्स आप ले सकते हैं, नाउंस। गदबान, शदीद गुस्से में, गदबान इज शदीद गुड, यानी रहमान इज इंटेंसली मर्सीफुल, बेपनाह रहम करने वाला। गदबान शदीद गुस्से में, इंटेंसली मर्सीफुल। ठीक है, 57 टाइम्स आया है कुरान शरीफ में। और रहीम में क्या होता है? कंटिन्यूटी होती है, तसलसल, इस तरह से रहीम, ऑलवेज 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 ऑलवेज। एंड रहमान इज रहमान, सुभान अल्लाह। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज रहमान एंड रहीम एट द सेम टाइम। एक वक्त में रहमान भी है और रहीम भी है, सुभान अल्लाह। तो रहीम जैसे जो अल्फाज होते हैं जिसमें सेकंड लास्ट लेटर में या आता है, वो उसकी आइडेंटिटी है। जैसे खूबसूरत किसको कहेंगे? उसको नहीं कि जो कल बदसूरत था। एक दिन में खूबसूरती आ भी नहीं सकती है, और एक दिन में खूबसूरती अगर आएगी भी तो वो डुप्लीकेट रहेगी, वो फेयर एंड लवली वाली। एक बार फेयर एंड लवली लगाया और पानी डाला तो चली जाएगी वो, तो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी उसके अंदर। सुभान अल्लाह, isn't it? Like Kareem, Shafiq, Munib, Nadeem, Hafiz, Qadir, so many examples, subhanallah, so many examples. Allah is Sami', Allah is Basir, Allah is Hafiz, Allah is Qadir, क्योंकि अल्लाह के सारी सिफात में कंटिन्यूटी है, सुभानअल्लाह, always always always, अल्लाहु अकबर। तो कंटिन्यूली मर्सीफुल 115 बार कुरान शरीफ में है। रहमत के जोश को तसलसल से ज़र्ब दीजिए, रहमत की मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश जो अल्लाह ताला बंदों पे कर रहा है। हद तो ये है कि गुनहगारों पर भी अल्लाह ताला इनिशियली उस पे भी उसको ढील देते हैं, देन एंड दे उसकी गिरफ्त नहीं करते हैं। अल्लाहु अकबर। ये एक लोगो है, सिंपल मेथड टू पॉन्डर इन कुरान। इसको मैं तफसील से आगे जाके बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें तो क्या तदब्बुर की बात आपके जहन में आनी चाहिए? हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और अपने अंदर एतमाद और यकीन रखें कि रहमान रहीम आपके साथ है, वो जरूर आपकी मदद करेगा। Isn't it? ये यकीन आपको रखना है। और हम अल्लाह की जितनी सिफात पर गौर करेंगे उतना ही जो है यकीन बढ़ेगा। अल्लाहु अकबर। तो एक सेकेंड हैबिट यहाँ पे लेते हैं, स्टार्ट एवरी एक्शन विद बिस्मिल्लाह। आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू कैरी ए पेन विथ यू। होपफुली एवरीवन हैज ए पेन और एक नोटपैड, कुछ एक डायरी वगैरह कुछ आपके पास में हो। पेन जरूरी है क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। तो फर्स्ट हैबिट वाज सेफ्टी फर्स्ट, औज़ु बिल्लाह में। सेकंड हैबिट बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के जरिए हम देख रहे हैं कि स्टार्ट एवरी एक्शन विद बिस्मिल्लाह। जिंदगी के हर काम को, नेक काम को बिस्मिल्लाह से शुरू करना है। ठीक है, और बिस्मिल्लाह के नाम से एक जिक्र भी हम करते हैं रोजाना। कौन मुझे बताएगा?
ہاتھ اٹھائیے جو جواب دینا چاہتے ہیں. یو کین ریز یور ہینڈ. بسم اللہ بول کے ایک ذکر ہم کرتے ہیں روزانہ صبح اور شام. Okay, let me ask Sister Shagufta. You can unmute, please, Sister Shagufta. Sister Shagufta, yeah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ ہر کام کے پہلے بسم اللہ بولتے ہیں. جی اور میں نے سوال کیا صبح اور شام کے اذکار میں بسم اللہ کے نام سے ایک ذکر ہم کرتے ہیں 3 بار روزانہ. بسم اللہ الذی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ وہ بولتے ہیں. نو ٹھیک ہے. سسٹر فرحہ سے پوچھ لیتے. سسٹر فرحہ بتائیے. سسٹر فرحہ پلیز انمیوٹ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور کام آسان ہو جاتا ہے اور برکت بھی آتی ہے. نہیں سسٹر فرحہ میں کہہ رہا ہوں صبح و شام کے جو اذکار ہم پڑھتے ہیں نا اس میں بسم اللہ کے ذریعے سے ایک ذکر ہم کرتے ہیں 3 بار بولتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ جی پڑھتے ہیں. ہاں وہی میں سننا چاہ رہا تھا. 3 بار کہتے ہیں نا. جی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. فی الارض نہ زمین میں ولا فی السماء نہ آسمان میں وهو السمیع العلیم وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اس. بارک اللہ فیک. may Allah bless you. ماشاءاللہ. اس کو what do I say, you know, I call it as sanitizer. سبحان اللہ. آج تو کووڈ-19 میں سارے لوگ سینیٹائزر یوز کرتے ہیں. سینیٹائزر یوز کرتے ہیں. you know what do I say? بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. سینیٹائز. spiritual sanitizer. اللہ اکبر. And you know totally safe. Morning میں 3 time پڑھتے, evening میں 3 time. So the habit is start every action with Bismillah. زندگی کے ہر کام کو کرنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ کہنا ہے. اسی میں تیسری ہیبٹ بھی ہے سبحان اللہ, اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرنا ہے. گمان means positive thinking about Allah. Always be think positive about Allah. اللہ کے احسانات کو آپ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ضروریات کو پورا کرنے والا ہے, محبت سے ہمارا خیال رکھنے والا ہے. جی اس نے جو ہے ہم کو آنکھ دیے, کان, دماغ, ہاتھ, پیر, ماں باپ, رشتہ دار. سبحان اللہ, انفینٹ باؤنٹیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. If you want to encompass, you know, if you want to encompass the bounties of Allah Azza wa Jalla, you cannot, because they are infinite in number. سبحان اللہ, infinite ہے. سبحان اللہ. تو جتنا آپ جو ہے اللہ کو جانیں گے اتنا اللہ کو مانیں گے. isn't it? تو تیسرا ہے تیسری عادت ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کریں. always think positive about Allah, کیونکہ اللہ رحمان و رحیم ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ ہیبٹ, always think positive about Allah. آگے بڑھتے ہیں. اچھا اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ سبحان اللہ. مثلا زندگی میں سکون رہے گا, خوشی رہے گی, کامیابی رہے گی, صحت اور اطمینان اور بہترین تعلقات وغیرہ اینڈ سو آن. اور یہ کافی لوگ ڈاکٹرز ہیں, ہم کو بتایا گیا ہے سیشن کے اندر, وہ ڈاکٹرز جو ہے اس بات کو پوری طرح سے سمجھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ڈاکٹرز جو ہے کے پاس میں جو ہے پیشنٹ آتا ہے اور ایک پیشنٹ کا بی پی چیک کیا نارمل ہے, شوگر چیک کیا نارمل ہے, تھائرائڈ, شوگر, دس اینڈ دیٹ پورا برابر ہے, پھر بھی اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو اکثر دیکھا ہوگا آپ نے ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی سب برابر ہے, ٹینشن مت لیجیے. باڈی کے اندر پورا برابر ہے, لیکن جو ہے دل کو بھی ذرا صاف رکھیے, لوگوں کو معاف کریے, غصہ مت کریے.
लोगों के बारे में अच्छा सोचिए, लोगों के बारे में हसद मत करिए, डोंट फील जेलस, डोंट एनवी। सुभान अल्लाह, आज साइंस भी इस बात को प्रूफ करती है, डॉक्टर्स नो मोर बेटर। सुभान अल्लाह, अल्लाह तो वही चाहता है, अल्लाह तो वही चाहता है कि भाई तुम लोगों के बारे में अच्छा ख्याल रखो ताकि तुम इत्मीनान से रात में सो सके इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मी नाम से अल्लाह ही अल्लाह के रहमान जो बड़ा मेहरबान और रहीम रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट बेनिफिशियल, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऊपर लिखा है तसव्वुर एहसास के साथ में, कितना अल्लाह मेहरबानी के साथ में मुझे पाल रहा है, मुझे रिस्क दे रहा है, वो सब तसव्वुरात के साथ में वो होना चाहिए। अच्छा, आपको जो कोर्स मटेरियल दिया गया होगा उसमें एक पॉकेट साइज की बुक वोकैबुलरी शीट भी होगी, तो वी स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप उसका प्रिंट आउट लें और वो वोकैबुलरी शीट को जो है आप याद करें, तभी जो है आपको वो फायदा होगा। 230 वर्ड्स की पूरी लिस्ट जो है उसमें मौजूद है इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, अल्हम्दु तमाम तारीफें और शुक्र, इसके दो माने हैं। फर्स्ट माना तो इसका है तारीफ, हम का माना होता है तारीफ, और दूसरा इसका माना है शुक्र। ऑल द प्रेज एंड थैंक्स, तमाम तारीफें और शुक्र इसके लिए है, लिल्लाही अल्लाह के लिए। ली प्लस अल्लाह, ली का मतलब होता है लिए, अल्लाह, अल्लाह का जो है एक्चुअल ओरिजिनल नेम है 149 टाइम्स इन कुरान। सुभान अल्लाह, लिल्लाही अल्लाह के लिए, तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है। रब, अल्लाह की एक सिफत यहाँ पे रब। जब भी आपके सामने ये रब लफ्ज आए तो आपको आसमान का पर्दा हटाना है। आसमान का पर्दा हटाइए आप, ऊपर क्या नजर आएगा आपको? सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज है, मिल्की वे है, इतना साइंस बोला, इतना ब्लैक होल है, मालूम नहीं ग्रीन होल होगा, पिंक होल होगा, ब्लू होल होगा, नहीं मालूम, साइंस इतना बोला इतना ही मालूम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कायनात, अल्लाह का और बहुत ज्यादा अल्लाह के इल्म है, अल्लाह का अर्श और क्या क्या है। तो गैलेक्सी में जो कुछ है, सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं, जितने स्टार्स हैं, सुभान अल्लाह, उसका सब पालने वाला एक अल्लाह रब्बे कायनात। उसी तरह से जमीन को फाड़ दीजिए, जमीन को फाड़ के देखिए, क्या कुछ नजर नहीं आएगा आपको। अल्लाह रब्बे कायनात इज द सोल केयर टेकर ऑफ एवरीथिंग व्हिच एग्जिस्ट above the sky and beneath the earth on the face of the earth। अल्लाह रब्बे कायनात, दिल की गहराइयों से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जी, परवरिश करने वाला, पालने वाला, जर्रे जर्रे करोड़ों खिलियों को, बिलियंस ऑफ सेल्स, अल्लाह अकबर, जन देने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आलम प्लूरल है, आलमीन, आलम मतलब जहान, वर्ल्ड। और मैं आपको बताते खुशी होती है, सुभान अल्लाह, जिसकी जबान उर्दू है, मैं कहता हूँ वो बहुत फॉर्चुनेट है, सुभान अल्लाह। क्यों? बिकॉज उर्दू इज द वेरी क्लोजेस्ट लैंग्वेज टू अरबिक लैंग्वेज, सुभान अल्लाह। अब देखिए इसमें ना, हम्द हम उर्दू में भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, और रब उर्दू में कहते हैं आपका रब कौन है? हमारा रब, हम सबका रब अल्लाह है, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। देन एक्सक्यूज, देन हम कहते हैं ना आलम इंसान, आलम हैवानात, आलम मलाइका, आलम जिन्नात, आलम अरवाह, आलम बरज़ख। तो सुभान अल्लाह, उर्दू पीपल आर वेरी मैं होमवर्क आपको देना चाह रहा हूं। अच्छा, एक चैलेंज क्या है जानते हैं आप ये सेशन के साथ में? क्योंकि ये सेशन है वीकली वंस, सो द चैलेंज इज मोर। वैसे तो डेली सेशन में ही चैलेंज है, क्योंकि 1 घंटा क्लास लेके हम छोड़ देते हैं, तो 24 घंटे के बाद में मिलते हैं, तो शैतान छोड़ता, आपको शैतान छोड़ता नहीं, फिर शैतान रेडी है। अब्दुल रहीम साहब क्या क्या बता के गए हैं, सुभान अल्लाह। तो 24 घंटे के लिए ही हम कहते हैं चैलेंज है। अभी तो आप जो 1 वीक के बाद में हमसे मिलने वाले हैं इंशाल्लाह, तो कुछ ना कुछ होमवर्क आपको देना पड़ेगा। तो प्लीज नोट डाउन होमवर्क हम आपको दे रहे हैं। देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना, दिल
से उसकी तारीफ कीजिए, अल्लाह के एहसानात को याद कीजिए और उसका शुक्र बजा लाइए। इसके ऊपर मैं एक एक्टिविटी, एक होमवर्क आपको देना चाह रहा हूँ। देखिए, नमाज के बाद में अभी तो काफी जगह पे ईशा की नमाज आपके पास हो गई है, इंशाल्लाह जब आप कल फजर की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो आप कम से कम एक बार ऐसा करिए, नमाज के बाद में जो आप 33 टाइम्स सुब्हानअल्लाह कहते हैं और 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह आप कहते हैं, तो एक बार ऐसे करना है, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कह के एक नेमत को जहन में लाना है। अभी क्या सिचुएशन है, सुपरसोनिक स्पीड में चल रहा, ये चल रहा है, अभी तो ये चल रहा है, लेकिन ऐसे नहीं, अल्लाह ताला को क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, isn't it? क्वांटिटी क्वालिटी, याद रखिएगा, दोनों तरह राइमिंग वर्ड्स है ना, क्वांटिटी क्वालिटी। इतनी जिंदगी चले गई क्वांटिटी के अंदर, अब जरा क्वालिटी पे ध्यान देंगे जी। कंपनीज में जो है क्यूसी का एक डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल का, तो अल्लाह के पास में भी होगा क्यूसी, बल्कि isn't it? क्वालिटी कंट्रोल अल्लाह के पास में भी होगा, सुभान अल्लाह, isn't it? तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह समझ के पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह तजवीज से पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह घर में खाना है, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप का साया सर पे है, अल्हम्दुलिल्लाह साहिब औलाद हूं। आप देख लीजिए अनगिनत नेमत अल्लाह, एक एक बार अल्हम्दुलिल्लाह बोल के एक एक नेमत को आपको याद करना है। ठीक है, एज ए होमवर्क इंशाल्लाह वी विल आस्क यू इन द नेक्स्ट सेशन बेदना इंशाल्लाह। सो तारीफ, जितनी आप तारीफ करेंगे उतना ही जो है, जितना गौर करेंगे आप उतना ही अल्लाह को जान पाएंगे। एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं आपको, अच्छा मैं चाहता हूं कि हर क्लास में एटलीस्ट 3 टेकअवेज आप लेना है। 1 घंटा नॉन स्टॉप आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 3 टेकअवेज फॉर एवरी सेशन, हर सेशन के 3 टेकअवेज आपको यहाँ पे लिखना है, आपकी डायरी में लिखना है। तो 20 लेसन होंगे इंशाल्लाह, 20 into 3 60 टेकअवेज, जबरदस्त सिलेक्शन आपके पास, कलेक्शन आपके पास में हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जितना अल्लाह को जानेंगे उतना अल्लाह को मानेंगे। दिस कैन बी द बेस्ट टेक अवे ऑफ टुडे सेशन। जितना अल्लाह को जानेंगे उतना अल्लाह को मानेंगे। द मोर यू नो अबाउट अल्लाह अज़्ज़ व जल, द मोर यू कैन बिलीव इन अल्लाह अज़्ज़ व जल। सुब्हानअल्लाह, isn't it the best one? सुब्हानअल्लाह। तो पॉइंट यहाँ पर है, लेट मी हाईलाइट इट सो दैट इट विल बी मोर क्लियर एंड बेटर फॉर यू। लेट मी यूज माय दिस वन, आदत नंबर 4, ओके, द फोर्थ हैबिट, खूब इल्म हासिल कीजिए ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। सुब्हानअल्लाह। सीक इंटेंसिव नॉलेज, इफ यू ऑल वांट इन इंग्लिश, सीक इंटेंसिव नॉलेज। सुब्हानअल्लाह, खूब इल्म हासिल करना है। जितना इल्म हासिल करेंगे तो उतना ही अल्लाह को जान पाएंगे। यू नो व्हाट अल्लाह सेज इन कुरान, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। अल्लाह से सबसे ज्यादा कौन डरता है जानते हैं आप? अल उलमा। Ulama means what? The learned one, the scholars, those who have the knowledge. Subhanallah. यानी जितना आपके पास इल्म होगा उतना ही आप दिल की गहराइयों से अल्लाह को जान पाएंगे और उसको आप पहचान पाएंगे इंशाल्लाह। क्या दुआ करेंगे? रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। सुब्हानअल्लाह। So that was the fourth habit in alhamdulillahi rabbil alamin. Once again, alhamdu तमाम तारीफ और शुक्र, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ है शुक्र अल्लाह के लिए जो रब है तमाम जहानों का। रहमत का मतलब है कि मोहब्बत के साथ किसी का ख्याल रखना और जरूरतों को पूरा करना। देखिए अल्लाह ताला किस तरह से मुसलसिल तौर पे हम पर रहम करम फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। और ये जो खुदरत का जो निज़ाम है कि जमीन जो है सूरत के अतराफ जो है एक सेकंड में तकरीबन 30 जो है किलोमीटर की रफ्तार पे जो है घूम रही है, लेकिन हम गिरते नहीं है, हलते नहीं है। कितनी मोहब्बत के साथ में अल्लाह ने हमको यहाँ पे जमीन पर रखा है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में और एक हैबिट है, एक तो है कि खूब इल्म हासिल कीजिए ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। दूसरा है बी थैंकफुल टू अल्लाह, यानी फिफ्थ हैबिट भी है उसके अंदर। आई डोंट नो, इट हैज गॉन समवेयर। फिफ्थ हैबिट है उसके अंदर कि खूब बी थैंकफुल टू अल्लाह। जब तारीफ अल्लाह की है तो शुक्र भी अल्लाह का होना चाहिए। फिफ्थ हैबिट इज बी थैंकफुल टू अल्लाह, अल्लाह का मशकूर होना चाहिए, क्योंकि सब नेमतें अल्लाह की है तो शुक्र भी अल्लाह का ही करना चाहिए। ठीक है, सो दैट वाज द फिफ्थ हैबिट।
अर्रहमान रहीम, अर्रहमान रहीम, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान रहम करने वाले हैं। और यहाँ पर से कौन सी हैबिट निकालेंगे? सिक्स्थ हैबिट, बी काइंड टू अदर्स। जब अल्लाह रहमान और रहीम है तो हमें भी लोगों के साथ में रहम और करम से रहना चाहिए, isn't it? तो बी काइंड टू अदर्स इज द नेक्स्ट हैबिट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस पाक में, मन ला यरहम ला युरहम, और कमा काल, जो लोगों पर रहम नहीं करता तो उस पर भी रहम नहीं किया जाता। सो ऑल बी काइंड टू अदर्स। सिक्स्थ हैबिट इज बी काइंड टू अदर्स। कोई बात नहीं, हमने जो मटेरियल आपको दिया है उसमें आपके हैबिट्स मिल जाएंगे। वंस वी फिनिश द सूरत अल फातिहा, हम आपको एक सिंगल पेज में पूरे हैबिट्स आपको बता देंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। सो वंस अगेन मैं आपको ये वोकैबुलरी शीट का रिमाइंडर दे रहा हूं। आपको वोकैबुलरी शीट को डाउनलोड करना है और उसको वर्ड बाय वर्ड उसकी मीनिंग्स को बाय हार्ट करना है, मेमोराइज करना है। और एक बहुत ही जबरदस्त ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर, आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इसका जो आरक्यू कोड है इसके भी आप स्कैन इसको कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो इसकी लिंक हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी दे देंगे इंशाल्लाह बेदिन, ठीक है। और ये जो कोर्स में 232 वर्ड्स हैं उसके तहत इस ऐप को बनाया गया है, और इसके फर्दर कोर्सेज भी इसके अंदर जो है इंशाल्लाह होंगे बेदिल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। प्लीज डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, वी विल सेंड द लिंक इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल बेदिल्लाह इंशाल्लाह। ओके, यहाँ पे सेकंड हाफ जो पार्ट बी का जो ग्रामर है वो हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। कबल इससे पहले कि मैं कुछ भूल जाऊं, ब्रदर जुबैर, shall we give those reminders now? Yes, please, please proceed. या कबल इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हमने देखा है व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए से कुछ लोग जो है जो डेटाबेस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में है, some people are using the contact numbers to contact other group members. ये एकेडमी के प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ है। It is totally against the policies, the principle, the protocol of academy. No one should use any number to contact anyone. कता नजर इसके कि वो सब्जेक्ट का है या नहीं है, इस्लामिक स्टडीज, नो कॉन्टैक्ट एट ऑल, नो कॉन्टैक्ट एट ऑल। आप डेटाबेस एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप्स का यूज नहीं करेंगे। ये बहुत ही स्ट्रिक्टली ये एकेडमी का मौकूफ है इस बात के ऊपर। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस एंड एवरीवन इज माशाल्लाह एजुकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक एथिक्स, ठीक है। may Allah bless everyone। चलिए, मैंने अभी कह दिया ताकि हम जहन से बात निकल ना जाए। देखिए, हमने आपको बताया है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए दो प्री रिक्विजिट हैं टू लर्न एनी लैंग्वेज, not only Arabic, Japanese or Dutch or French or Turkish, any language. You need two things. What are those two things? Please raise your hand to answer. किसी भी जबान को सीखने के लिए दो चीजें चाहिए आपको। What are those two things? Dr. Shama Mashhood, please unmute. Dr. Shama, please unmute. Can you hear me now? Yes, I can. Yeah, walaikum assalam wa rahmatullah. Vocabulary and grammar, these are two essential things to learn a language. Mashallah, mashallah, may Allah bless you. And here is the smiley for you, mashallah, may Allah bless. Absolutely correct, absolutely correct, mashallah, mashallah, mashallah. So vocabulary and grammar, subhanallah, ये जो है दो चीजें चाहिए किसी भी इसको समझने के लिए, किसी भी जबान को सीखने के लिए, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो अभी मैंने औदु बिल्लाह बताया, बिस्मिल्लाह बताया, अल्हम्दुलिल्लाह बताया, उसके जरिए से मैंने आपको वोकैबुलरी बताई। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं ग्रामर, विच इज द एसेंशियल टू लर्न एनी लैंग्वेज। ग्रामर में देखेंगे हम इंशाल्लाह प्लूरल फॉर्म्स। मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, काफिर, सालेह आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन्स। ये इस्म की जो है एग्जांपल्स हैं। Brother Ibrahim, yeah, Brother Abdul Rahim, we have to launch the third poll. The participants poll is also there. where can I find that third poll? Acha, okay, There's a third poll is there. this one.
Yes, sir. No, but There are 3 polls. First one is the single participant, a single choice. Second one is a multiple choice. And the third one is for the participant strength. no, but they are answering. I don't know for which question they are answering now. No, I mean to say that is for the strength of the participants. अच्छा अच्छा yeah, are they yeah, brother Zubair? Yes, please. Yeah, these people I'm not getting any. आपने कहा कि strength of the participants. अब ये लोग जो आंसर कर रहे हैं for what थोड़ा समझा नहीं मैं. Okay, you just carry on. I'll explain you tomorrow then. You just carry on with your lesson. Okay. अब इसको stop कर दूं मैं. Some people are I don't know for what question they are. I see here ABCD लोग आंसर कर रहे हैं something. Okay, you may stop. You may stop and carry it. Yeah, people are saying in the chat they are okay. ठीक है. अच्छा, student strength. अच्छा, sorry. Yeah, brother Zubair, I just got it. Yeah, now you can see the poll question here. Student strength. Jazakallah khair. Sorry. I think earlier it didn't appear. Now it came. One participant, 2 participant, 3 participant, 4. आपके के साथ में जितने लोग बैठे हैं उसके हिसाब से आपको देना है. इंडिविजुअल होगा तो 1 participant, हस्बैंड वाइफ होगा तो 2 and so on. This poll is very important. I request everyone to attend this poll. This is very important. Okay, stopping in 3 seconds. Please make it fast. Still 60 of you are left. Out of 318 to 69 of you have attended the poll. Okay, I'm stopping in 3 seconds. Please make it fast. 3, 2, 1, and stop. Okay, mashallah, sharing this one. Mashallah, almost 202 of you are single participants, then 48 2 and so on. Mashallah. Barakallah feek. Barakallah. Okay, let us go ahead now. So here is the poll. How many pronouns we have learnt in course 1? Lesson 1, I mean just lesson 1. How many pronouns we have learnt in lesson number 1? 5 or 6 or 10 or no idea? Let me launch the poll. Yeah, please. How many pronouns we have learnt in lesson number 1? Please make it fast. Okay, stopping in 3 seconds. 3, 2, 1, and stop. Okay, ending the poll and sharing the results. Mashallah, most of you have chosen the correct answer.
It's 6. Okay, we have learned 6 pronouns in lesson number 1. Can anyone tell me those 6 very quickly, please? What were those 6 pronouns? Let me ask Dr. Rahela Ruby. Dr. Rahela Ruby, please. Dr. Rahela Ruby. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. हाँ, हुवा, हुम, अंता, अंतुमा, अना, नहनु. It was not antuma, antum. Okay. Okay. Anta, ana, antum, nahnu. MashaAllah. May Allah bless you, and here is a smiley for you. MashaAllah. MashaAllah. May Allah bless. Barakallahu feek. So the 6 pronouns which we learned in course number 1. अच्छा यार एक सवाल है आपके पास, हुआ हम अंता अना अंतुम नानु, ये 6 अल्फाज कुरान में कितनी बार आते हैं? 600 बार, 800 बार, 1000 बार या 1300 मरतबा? जल्दी करिए. You need to be quick in answering the poll. Stopping in 3 seconds. 3, 2, 1, and stop. Sharing the results. MashaAllah. Subhanallah. Almost 79% of you have answered correctly. It's 1,300. Okay, 1295 times. Very good, MashaAllah. Very good. 129. तो ये था हमने जो देखा अभी, जो डॉक्टर रूबी ने जो बताया था. हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब. ठीक है, ये हमने देखा था. अगर मैं आपसे पूछूं मन हुआ, हु इज ही, आप बोलेंगे हुआ मुस्लिम. अच्छा, मन का मतलब होता है कौन, हु. मन सवाल होता है. अच्छा, मैं समझता हूं ये मन जो है ना, ऑलमोस्ट हर मुसलमान को पता होता है मन का मतलब. वो कैसे, वो कैसे? एनी गेस? जल्दी जल्दी आप बताइए. डॉक्टर मोहम्मद औरंगजेब, डॉक्टर मोहम्मद औरंगजेब, प्लीज सर अनम्यूट. डॉक्टर मोहम्मद औरंगजेब, प्लीज अनम्यूट. जी जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जनाब जी सर, सवाल मेरा क्या ये सवाल है, है सर? सवाल मेरा ये है, मैं कहता हूं, मेरा ये यकीन है इंशाल्लाह, मन जो लफ्ज है तकरीबन मुसलमान को मालूम होता है ये मन का लफ्ज. ठीक. तो किस एतबार से, किस सेंस में पूछ रहा हूं मैं? आमतौर पे जो है ये सवाल होता है, मन हुआ, हाँ. आप कौन हैं? जी, मेरा इशारा उस आप तरफ. सब कौन हैं? जी, मेरा इशारा वो कब्र के सवाल की तरफ है, जो कब्र में अच्छा. सवाल होने वाले हैं. हाँ, कब्र में सही सवाल होगा. पहला सवाल कब्र का, पहला सवाल ये कि आप कौन हैं, मन हुआ. नहीं सर, हम जब हमारे कब्र का पहला आप सवाल मन रब्बु का, आपसे आप मन रब्बो का, आपका रब कौन है, आपका दीन क्या है, आपके रसूल कौन है. माशाल्लाह. अल्लाह आपके लिए वो सवालों को आसान फरमाए इंशाल्लाह. आमीन. हम सब के लिए इंशाल्लाह, हम सब के लिए. जज़ाकल्लाह खैर फॉर जॉइनिंग, बारकल्लाह फिक. पहला सवाल है कब्र का, मन रब्बु का. सुभानअल्लाह, इज़न्ट इट? हम बोलेंगे रब्बी अल्लाह, अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह मेरा रब है, इज़न्ट इट? अल्लाह आपके और हमारे सब के लिए कब्र के सवालात को आसान फरमाए. और याद रखिए, जिसका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. अल्लाह हमारे लिए आसान फरमाए. सो मन इज हु. ओके, कब्र में पूछेंगे हु इज योर लॉर्ड. तो मन हुआ मुस्लिम, मन हम मुस्लिमून. मन अंता, आप बोलेंगे अना मुस्लिम. मन अंतुम,
कौन है आप सब लोग? नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं, isn't it? सुभान अल्लाह। और एक स्विच ऐड कर रहे हैं, हल हुआ भी, अच्छा हल का मतलब होता है क्या? हल हुआ बिखैर, क्या वो खैरियत से है? नाम हुआ बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ वो खैरियत से है अल्हम्दुलिल्लाह। हल हुम बिखैर, क्या वो सब खैरियत से हैं? आर दे ऑल ओके फाइन? नाम हुम बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ वो सब खैरियत से है अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंत बिखैर, आप खैरियत से हैं क्या? नाम अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह, यस आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंतुम बिखैर, आर यू ऑल फाइन? नाम नहनु बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ हम सब खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। Okay? The new one, the new lesson, 78,000 total words हैं कुरान के, 3 कैटेगरीज है, इस्म, फ़िल और हर्फ। इस्म का मतलब किसी का नाम या उसकी सिफत, जैसे किताब, मक्का, मदीना, हैदराबाद, ओके, दुबई और रियाद और मस्कत और ओमान, यू नो, ओके, सिटी और कंट्री। और दूसरा है फ़िल, जिसमें काम के होने या करने का पता चले, एक्शन वर्ड, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं ना, एग्जैक्टली वर्ब जो होता है वही जो है फ़िल है, सुभान अल्लाह। जैसे फतहा, कतबा, नसरा, हफिद, एक्शन वर्ड जिसमें एक्शन होता है उसको फ़िल कहते हैं। तीसरा है हर्फ। हर्फ क्या है? वो पार्टिकल है जो इस्म और फ़िल को जोड़ता है और मिलाता है। फॉर एग्जाम्पल किताबुन, किताबुन अ बुक, तन्वीन आता हो तो सिंगुलर हो जाता है, अ बुक हो जाता है। वो अल लगाएंगे तो डेफिनेट आर्टिकल हो जाता है, खास हो जाता है। जैसे इंग्लिश में ए एंड दा होता है ना, तो तन्वीन से ए होता है और अलिफ लाम से दा होता है, तो अल किताब मतलब अल किताबु द बुक हो जाएगा। वो किताबुन अ बुक, अल किताबु द बुक हो जाएगा। वो तो मुस्लिमुन से अल मुस्लिमु, मुस्लिमुन अ मुस्लिम, अल मुस्लिमु द मुस्लिम, मुस्लिमुन से अल मुस्लिमु, मुमिनुन से अल मुमिनु, सालिहुन से अस सालिहु, काफिरुन से अल काफिरु, मुशरिकुन से अल मुशरिकु। ए और दा का फर्क है। और ये जो नंबर्स क्या है ये बताते हैं नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड इन कुरान, सुभान अल्लाह। इस्म के एग्जांपल है मुस्लिम, मोमिन, सालिह, मुशरिक एंड सो ऑन। अच्छा, जमा बनाने का फॉर्मूला क्या है? हाउ टू मेक प्लूरल ऑफ अरेबिक नाउन्स, मैस्कुलाइन नाउन्स, बाय एडिंग वाउनून और यानून। ठीक है ना, किसी भी नाउन में वाउनून यानून मिलाएंगे तो उसकी प्लूरल हो जाएगी। तो मुस्लिम में वाउनून मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मुस्लिमूना और मुस्लिमीना, बोथ आर प्लूरल्स, बोथ आर प्लूरल, दोनों भी प्लूरल है। दोनों का डिफरेंस क्या है आगे आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। सो लाइकवाइज मुमिन प्लूरल इज मुमिनूना मुमिनीना, सालिह प्लूरल सालिहूना सालिहीना, काफिर प्लूरल काफिरूना काफिरीना। वाउनून यानून will make the noun into plural form. मुशरिक मुशरिकूना मुशरिकीना, मुनाफिक मुनाफिकूना मुनाफिकीना, प्लूरल फॉर्म। अच्छा, और एक सवाल है, वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? अभी मैं बताया था आपको, इफ एट ऑल यू हैव पेड अटेंशन देयर। लेट मी लॉन्च द पोल। ओके, यस, बिस्मिल्लाह। वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? अभी मैंने बताया था आपको। Mashallah, very happy to see the quick answers. Mashallah. Let me stop in 3 seconds. 3, 2, 1, and stop. Mashallah. Okay, ending the poll, sharing the results. Mashallah, 74% result. Option A is the correct answer. Ism, fi'il, harf, 3 categories. Mashallah. Very good. Mashallah. Okay. So the plural of Muslim is Muslimuna, Muslimina. मोमिन का प्लूरल मुमिनूना मुमिनीना, सालिह सालिहूना सालिहीना, काफिर काफिरूना काफिरीना, मुशरिक मुशरिकूना और मुशरिकीना। अच्छा, अगर हम टीपीआई से करेंगे तो हुआ मुस्लिम हुम मुस्लिमून, अंत मुस्लिम अना मुस्लिम, अंतुम मुस्लिमून नहनु मुस्लिमून। वो एक मुसलमान है, वो सब मुसलमान है। हुआ मुस्लिम हुम मुस्लिमून, अंत मुस्लिम आप मुसलमान हैं, अना मुस्लिम मैं मुसलमान, अंतुम मुस्लिमून आप सब मुसलमान हैं, नहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान हैं, वी ऑल आर मुस्लिम्स। अगर जमीर, जमीर मतलब प्रोनाउन,
प्रोनाउन सिंगुलर है तो नाउन भी सिंगुलर रहेगा, प्रोनाउन प्लूरल है तो नाउन भी प्लूरल रहेगा। ऑब्वियसली समझ में आने वाली बात। ही सिंगुलर है तो मुस्लिम बोले, दे प्लूरल है तो मुस्लिम बोलेंगे। ही इज अ मुस्लिम, दे आर मुस्लिम्स, इजंट इट? सुभान अल्लाह। वा का मतलब होता है एंड, वा का मतलब है एंड। अगर मैं बोलूं वा अना मुस्लिम तो क्या बोलेंगे? आंसर आप क्या चूज करेंगे? और मैं एक मुसलमान हूं, मैं एक मुसलमान हूं, हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान हैं। पोल लॉन्च कर रहा हूं, आप जल्दी जवाब दीजिए पोल में। व अना मुस्लिम, वा का मतलब है और। माशाल्लाह माशाल्लाह, so you all are very quick learners, माशाल्लाह। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। Stopping in 3 seconds. 3, 2, 1 and stop. Mashallah. And sharing the results. Subhanallah. Very happy to see the correct answers. Mashallah. और मैं एक मुसलमान हूँ। वा का मतलब और, अना का मतलब मैं, मुस्लिम का मतलब मुसलमान हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ। माशाल्लाह, वेरी गुड। आइए अरबिक बोलचाल में चलते हैं। हल का मतलब है क्या, नाम का मतलब है हाँ। हल से जो है सवाल बनता है, इंटरोगेटिव पार्टिकल, जैसे इंग्लिश में कहते हैं आप। हल से हल अता का हदीसुल गाशिया, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, इजंट इट? और नाम का मतलब है हाँ। अगर मैं पूछूं हल हुआ मुस्लिम, इज ही अ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है? आप बोलेंगे नाम हुआ मुस्लिम, यस ही इज अ मुस्लिम, हाँ वो मुसलमान है। हल हुम मुस्लिमून, नाम हुम मुस्लिमून। हल अंत मुस्लिम, नाम अना मुस्लिम। हल अंतुम मुस्लिमून, नाम नहनु मुस्लिमून, यस वी ऑल आर मुस्लिम्स, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, एक और सवाल है आपके पास में। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ अंता? अंता का प्लूरल क्या है? हम है या अना है या नहनु है या नन? थोड़ा ट्रिकी है, जरा ध्यान दीजिए। द क्वेश्चन इज लिटिल बिट ट्रिकी। I already told you it's a little bit tricky, so be careful. Question is, what is the plural of anta? जवाब नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती मत करिए। सुभान अल्लाह। और एक क्लू दे दिया आपको मैं। Oh my God. So stopping in 3 seconds. 3, 2, 1 and stop. Time is really running. Sharing the results. Mashallah, almost 149 of you have answered correctly. It's none. Subhanallah. Why it's none? Because the plural of anta will be antum, which is not there. Subhanallah. Okay, आइए नुक्ते तालीम, लास्ट पार्ट। दिमाग को इस्तेमाल कीजिए या इसको खो दीजिए। यूज इट और लूज इट। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने जबरदस्त दिमाग दे के रखा है। हम बमुश्किल 5 से 25% ही दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन खाली है। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, एज इट इज सेड। सुभान अल्लाह। जब आप 60 बरस के होते हैं, साइंस सेज ऑलमोस्ट 3% ऑफ ब्रेन सेल्स डाई, इनएक्टिव हो जाते हैं। वो भी क्यों होता है? वो भी जो है उम्र का जो है प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से होता है। और आप बड़ी उम्र को पहुंच जाते हैं तब शैतान जो है आपको ये हमारे किस्म के वसवसे डालता है, इतनी उम्र हो गई अब कैसे सीखेंगे, इस तरह की बातें बोलता है। अल्लाह अकबर। याद रखिए 97% दिमाग अभी भी आपका बिल्कुल हशाश बशाश है, तरोताजा है। सुभान अल्लाह। वर्जिश जरूरी है दिमाग के लिए, प्रैक्टिस जरूरी है, ज्यादा जरूरी है उम्र रसीदा लोगों के लिए, वरना आखिर मरने लगते हैं। और एल्स ब्रेन सेल्स विल डाई। क्यों ना कुरान को सीखने के लिए इस्तेमाल करें। कुरान को सीखना एक खास रहमत की बात है। यूज इट और एल्स यू विल लूज इट। सुभान अल्लाह। अगर आपको कोई कहे कि कुन जहन है आप, विल यू एक्सेप्ट इट? एब्सोल्युटली नॉट। फिर आप शैतान की क्यों सुनते हैं जब आप शैतान ये कहता है कि कुरान मुश्किल है? सो व्हाई यू गिव शैतान a chance to whisper you saying that कुरान मुश्किल है? Never ever, कभी नहीं सोचना इस तरह से, and get back to yourself। और जब भी मुश्किल का ख्याल आए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, I seek refuge in Allah from shaitan the outcast। मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की शैतानी मरदूद से। बोलना है और आगे बढ़ना है। सुभान अल्लाह। So jazakallahu khairan, that was all for today's lesson।
Brother Zubair, any more reminders to give them? No, that's all, sir. We can wind up right now. Okay, Jazakallah don't khair. forget, don't forget to do the homework. ठीक है ना, मैंने होमवर्क आपको दिया है, एक्टिविटी दिया है, 33 टाइम्स जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, अल्लाह की एक नेमत को ज़हन में लाना है. Don't forget to go through the textbook of it, and don't forget to solve the worksheet of it, and very important, don't forget to see the video of this particular lesson. All the videos are uploaded on our official YouTube channel. It's Understand Quran Official. And don't forget to download the app as well, which I discussed in the course, discussed in the class. Inshallah, the link of that app will be given in the WhatsApp group. अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान और हदीस को पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए. اللهم زين قلوبنا بزينة الإيمان نور قلوبنا بنور القرآن اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنتك مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.